Yes, hello everyone. Very good afternoon to all of you, my dear students. Very good afternoon to everyone. So, today we are going to start with Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Okay, this law has repealed the former law, that is CRPC, Criminal Procedure Code 1973. Okay, however, the essence of CRPC is maintained in BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Okay, what do I mean by essence is that the spirit of CRPC is maintained in BNSS. However, there is a small changes, and those small changes are also very welcoming. It is not very difficult for you to remember the new section numbers. We will be in our this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita batch, we will be doing a comparative analysis that what was that law earlier, in which section it was there, and now in the new BNSS, what are the changes is there, whether that change have any sufficient meaning or not. Okay, तो ये हम पढ़ेंगे BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. I know it is for you also, it is difficult for you to remember the name, but once you start repeating it, once you start using it, it will be easier for you. Okay, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं इसका नाम भी ढंग से नहीं बोल पाता था, राइट. I was not able to say it properly, but the moment I start reading it again and again, using it again and again, now I am okay with it. So the same thing will also apply upon your section numbers. You will say, sir, it is so many sections in the new BNSS. Earlier it was 485 somewhere, right? 485 approximately. And now it is more than 500 sections. So 580, 531 or 32 is the sections, total number of sections approximately. Dipanshi says 531. One more student says, Rupal says 531. Yes, around 531, to be exact, 531 sections are there. 528 is the inherent powers of High Court. Earlier it was 482. So the thing is that you need not have to worry upon remembering the sections. As Miss Ankita have said, today Ankita was there in our class, and she has mentioned that once you start reading it, and once I start telling you again and again, that section will be having an impression in your mind, and that impression will be a very long lasting. Okay, तो ये कभी भी फियर मत रखना, डर मत रखना कि इतने सारे सेक्शंस आप कैसे करोगे. I am there to help you out, right? I make sure that you will be learning those sections as well. Okay. So today it is a orientation class of BNSS. In orientation, I will be telling you that what all topics are there that we are going to study in BNSS, and what all topics will be there, which I will be leaving for you to read it by yourself, right? Because it is not possible for me to complete the 100% sections. Rather, I will be doing 80% sections. I will be completing 80% of the entire CRP, this BNSS, and 20% I will be leaving upon you. And those 20% are more of reading, right? उसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, कुछ explanations नहीं है. And I will also be telling you that what are those 20% which you have to do it by yourself. Major portion I will be doing it, right? I will be not leaving any stone unturned. ठीक है, right? So आज orientation class है BNSS की, जिसमें I will be telling you what Precious sir. Yes sir, the concepts are already taught by you, just the changes and section numbers. Yes, since Priksha has already taken our CRPC class earlier, so therefore Priksha is saying, sir, you have already taught. Yes, however, there are few changes, right?
and those changes are also very very important, and I have mentioned those changes. वो जो changes हैं वो मैंने अपने जो दूसरा सीरीज चल रही है हमारी हमारी एज एन आई एम called as a chief guest in a university called Maharishi University of Information and Technology. तो वहां पे कल भी एक और लास्ट लेक्चर है हमारा, उसमें आई विल बी कंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस, राइट? सो यू मे ज्वाइन दैट session as well. So few changes have been made in BNSS. However, if you talk about the IPC, that is BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, then over there also the spirit has remained the same. But when we talk about the sections, then they have done overhauling. सारा sections उन्होंने पूरा change कर दिया in BNS. However, we will be doing that as well with respect to BNSS, क्योंकि हम जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ेंगे तो इसमें I will be connecting with the BNS and BSA, that is भारतीय न्याय संहिता and भारतीय साक्ष्य अधिनियम as well. ठीक है, all right. तो ये सारी चीजें I will be discussing in our further classes. So today again I am coming to the same point, that is the orientation class, in which I will be telling you that what all topics we will be doing. Okay, so first topic, you please make a note of it. I will be also making it. I will be also writing it for your reference. So first topic is jurisprudential and constitutional essence of BNSS. That is jurisprudential and constitutional. Okay, one more thing. Yesterday I was talking to Ankita. She was here today, and she was saying कि सर जब मैंने अपने आंसर शीट चेक करी तो मैंने ये and यूज करा था कई बार in my mains examination, this type of symbol. And in my mains examination, since I have a habit of writing and like this, so in mains examination, the examiner has circled it and accordingly have deducted my marks. So therefore, you should also not develop such type of practice which is not appropriate for your mains writing. तो ऐसी practice मत develop करिएगा, ठीक है? Is it clear? So jurisprudential and constitutional essence of BNSS. That why do we require BNSS? Why CRPC was not sufficient enough? Why do we require BNSS? What is the constitutional essence? If we do not have CRPC or BNSS, then what will be the situation in that case? So all these things we will be discussing in this topic called jurisprudential and constitutional essence of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Okay. And the further next topic is the inherent powers. Inherent powers of High Court, section 528. 528 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Earlier it was in 482. There is a slight change in this inherent power. Okay, right. तो इसमें we will be also discussing that ये जो inherent power हमने हाई कोर्ट की बताई है, क्या normal court also have the inherent powers, right? The normal court for this reference is the judicial magistrate first class, the judicial magistrate second class, executive magistrate. Do they have the inherent powers? And for your reference, again, one more point, that in BNSS, we do not have the metropolitan magistrate. Earlier, we used to have this metropolitan magistrate, but now, after the commencement of this new law, we do not have this metropolitan magistrate. Okay. Further, after this inherent powers, और एक और क्वेश्चन कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है या नहीं, क्योंकि सीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो सीपीसी में सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स दे रखी हैं,
फॉर ऑल द कोर्ट्स, ओके। बट यहाँ पे 528 में इन BNSS the inherent powers is only saved to the high court, okay. Next we have to discuss the hierarchy of courts. Hierarchy of courts and competency of courts. Competency of courts, okay. तो hierarchy of court में section 6 is there in BNSS, ओके। तो वहां पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फिर आपका CJM है, राइट। तो ये हायरार्की है। उसके साथ साथ वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 21, राइट, दैट इज द पावर्स, राइट। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, राइट। यहाँ पे पावर्स की बात की गई है, पावर्स ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। पावर्स किस चीज की? पावर कन्विक्ट करने की। पहले क्या था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सजा दे सकता था और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, दैट इज फाइन। बट नाउ आफ्टर दिस BNSS देयर इज द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन इम्प्रिजन फॉर 3 years और फाइन फॉर 50,000, 50,000 रुपए, या फिर कम्युनिटी सर्विस। So this community service has been added, and what is community service that we will be discussing, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके साथ साथ we will also be reading section 232, section 232 that is talking about क्या नाम है, कमिटल, कि अगर कोई ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय जुडिशियल, बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, तो फिर उसको कमिट करेगा। पहले ये सेक्शन 209 में हुआ करता था, बट नाउ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू लॉ इट इज 232, ओके। और अगर हम कमिटल पढ़ रहे हैं तो हमें सबमिशन भी करना पड़ेगा, सो दैट सबमिशन इज गिवन अंडर 364 सबमिशन। पहले ये 325 में था, अब ये 364 में, ओके। इसके साथ साथ we will also be reading section 212 that is making over। पहले 192 में था, अब 212 में है मेकिंग ओवर। तो यहाँ पे टॉपिक्स आप लिखते रहना साथ साथ, मैं सेक्शंस लिख रहा हूं। वहां मेकिंग ओवर भी हम पढ़ेंगे यहीं पर, कि मेकिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद we will also have the general discussion, general discussion upon difference between investigation, general discussion upon difference between investigation, inquiry and trial। कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वी विल बी रीडिंग डेफिनेशंस, राइट। डेफिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कि डेफिनेशन में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी है, राइट। तो वहां हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज इंक्वायरी, व्हाट इज ट्रायल, दीज आर द 3 स्टेजेस, राइट। तो ये 3 स्टेजेस हैं, 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या 2 स्टेजेस के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या इंक्वायरी और ट्रायल साथ साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी साथ साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कौन सी सिचुएशन में होगा। तो अगेन इट विल बी अ वेरी एग्जॉस्टिव डिस्कशन वी विल बी हैविंग, राइट, कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, ओके। फर्दर we will discuss the difference between the cognizable and non-cognizable offenses, difference between cognizable and non-cognizable offense, कि cognizable offense क्या होते हैं, non-cognizable offense कौन से होते हैं, right। उसके साथ साथ we will also be doing the क्या नाम है, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसके साथ हमें एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जो कि 174 है,
क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है बाय द पुलिस ऑफिसर, और वहां पर द पुलिस ऑफिसर डू नॉट हैव द लिबर्टी टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो दैट इज 174। अर्लियर इट वाज इन 155, पहले 155 में था, अब ये 174 में है। ठीक है, राइट। बट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम वहां पे एफआईआर लॉन्च करते हैं। पहले 154 में था, अब सेक्शन 173 है। नाउ 173, ओके, राइट। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस एंड ऑल्सो द कंप्लेंट, हम एफआईआर पढ़ेंगे एंड कंप्लेंट पढ़ेंगे। तो एफआईआर तो 173 में दे रखा है, देयर इज अ चेंज इन एफआईआर। अब यहाँ पे चेंज है, क्या क्या चेंजेस हैं ये सारी चीजें वी विल बी डूइंग इन डिटेल, राइट, ओके। और अगर हम कंप्लेंट की बात करें तो पहले 2D में था, अब इट इज इन 2H। 2H में डिफाइन है कंप्लेंट, ओके, राइट। तो दिस वी विल बी डिस्कसिंग। तो जब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं तो वी विल बी डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का वो चल रहा होगा स्टेज, और अगर इन्वेस्टिगेशन एफआईआर चल रहा है तो वहां पर सेक्शन 176 वी विल बी डूइंग, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। तो पहले ये 157 में था, अब ये 176 में है। और यहीं पर बात आता है अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट, ओके, अकरेंस रिपोर्ट। अब अकरेंस रिपोर्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये था इमीडिएटली भेजनी होती है हमें, अब इमीडिएटली के साथ साथ फोर्ट नाइटली भी, हर 14 दिन में हमें रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। नाउ दिस दे हैव मेड द चेंज। अगर आप ये 176 पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है इमीडिएटली के साथ साथ फोर्ट नाइटली। फोर्ट नाइटली का मतलब होता है हर दूसरे हफ्ते में आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी अपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो ये अकरेंस रिपोर्ट वी विल बी डूइंग। अब क्योंकि ये अकरेंस रिपोर्ट तो हम कर रहे हैं 176 से लेके 177 तक वी विल बी डूइंग, 176 से लेके 177 तक वी विल बी डूइंग। इसके साथ साथ नेक्स्ट फर्दर वी विल डिस्कस द statement made to the police. Next topic will be statement made to the police. So next topic will be the statement made to the police. Okay. अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट होती है कि जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, राइट, तो आई मे फाइंड वन पर्सन whom I believe that he is acquainted with the facts and circumstances of the case. तो अगर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होगा तो मैं उसको बुला लूंगा और उसको बुला के पूछताछ कर सकता हूं। तो जो बुलाने का प्रोसीजर है, कॉलिंग अ विटनेस, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 179। पहले 160 में था, अब 179 में दे रखा है। ठीक है, तो 179 से लेकर 182 तक वी विल बी डिस्कसिंग दिस। This is specifically talking about statement made to the police in the course of investigation. ठीक है, तो ये इनके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्शन 179 से लेकर 182। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे नेक्स्ट। इसके साथ साथ क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं तो स्टेटमेंट के साथ साथ कन्फेशंस भी हो सकते हैं, कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। तो कन्फेशन, अब कन्फेशन है तो पहले 164 में था, अब 183 में है, सेक्शन 183, राइट। अब कन्फेशन पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता था, बट नाउ सिंस देयर इज नो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सो देयरफॉर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी रिकॉर्डिंग द कन्फेशन। तो ये प्रोसीजर है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस ऑफिसर अक्यूज को अरेस्ट कर लेता है और अक्यूज
खुद से कहना चाहता है कि जज साहब मैं कन्फेस करना चाहता हूं, तो पुलिस ऑफिसर खुद तो रिकॉर्ड करेगा नहीं कन्फेशन, तो उसके लिए वो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके कन्फेशन रिकॉर्ड करवाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने का, वो 183 में दे रखा है, अर्लियर इट वाज इन 164। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट फर्दर। अब कन्फेशन के साथ साथ एक और टॉपिक है कॉल्ड, दैट इज पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड या तो पुलिस कस्टडी। पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, कि पुलिस रिमांड हम पढ़ेंगे। पुलिस रिमांड क्या होती है? दैट इज पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी लेने का एक तरीका है, एक देयर इज अ प्रोसीजर, राइट? अर्लियर इट वाज इन 167, नाउ इट इज इन 187, section 187, and this is very important topic, right? Very important section also. Why? Because over here we have the concept called default bail. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट किसका? पुलिस ऑफिसर के डिफॉल्ट का, राइट? दैट पुलिस ऑफिसर हैड कमिटेड अ डिफॉल्ट, और उसके डिफॉल्ट की वजह से हमें बेल देना पड़ेगा, और वो बेल मैंडेटरी है, चाहे कितना भी हीनियस ऑफेंस हुआ हो। ठीक है, तो दिस वी विल बी स्टडिंग दैट व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। यहाँ इसके अंदर ही आ जाता है वो इनिशियल 15 डेज का पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, जहां पे अब नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द न्यू टाइमलाइन दैट इज 40 और 60 डेज। 40 in case the offense is less than 10 years punishment, 60 days in case if the offense is more than 10 years punishment, 10 or more than 10 years. So that we will be discussing in detail. You need not have to worry about that over here. अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, टुडे my main agenda is to make you acquainted with the terminologies, to make you acquainted with the topics, right? That is my main agenda. That is my main agenda of today's class, that is of orientation class. Okay, ठीक है। तो क्योंकि हम डिफॉल्ट बेल पढ़ेंगे, तो डिफॉल्ट बेल इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी होगा। तो जो वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर विल बी मेकिंग अ रिपोर्ट, right? That can be in the form of closure report, that can be in the form of closure report, or that can be in the form of positive report. ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट तब जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई इस एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं करा, तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता है। पहले 169 में था, अब सेक्शन 189। पहले 169 में था, अब सेक्शन 189 है। पॉजिटिव रिपोर्ट जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ इस एक्यूज ने ऑफेंस करा है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, ये पहले 170 में था, अब 190 में है। नाउ इट इज इन 190। ठीक है, और क्योंकि हम अभी ये पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, अरेस्ट के बारे में थोड़ा देख रहे हैं, तो अरेस्ट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हम सेक्शन 58 पढ़ेंगे। सेक्शन 58 ऑफ BNSS। सेक्शन 58 कहता है कि आप एक्यूज को जब आप अरेस्ट करते हो, तो उसको रीजनेबल टाइम से ज्यादा या फिर 24 घंटे से ज्यादा अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकते। यू हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो क्योंकि 58 हम पढ़ेंगे, तो 57 भी हम पढ़ेंगे, 59 भी हम पढ़ेंगे, राइट? दीज आर द फ्यू कनेक्टिंग सेक्शंस दैट वी विल बी स्टडिंग। ऑलराइट, अब आगे फर्दर वी विल स्टडी व्हाट, क्योंकि हमने अभी क्लोजर रिपोर्ट लगाई है या पॉजिटिव रिपोर्ट लगाई है, तो उसके साथ साथ मैं केस डायरी भी मेंटेन करूंगा। केस डायरी, केस डायरी पहले 172 में हुआ करती थी, अब 192 में दे रखा है, राइट? सो वॉट एवर सेक्शन आई एम राइटिंग दैट इज ऑफ BNSS,
और इसके अलावा मैं कोई सेक्शन बता रहा हूं तो वो सीआरपीसी का है। ठीक है, तो 192 में केस डायरी दे रखा है, पहले 172 सीआरपीसी में दे रखा था। अब जब केस डायरी भी हमें सबमिट करनी होती है इसके साथ साथ, नेक्स्ट वी विल बी फाइनली फाइलिंग अ पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट या तो क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है या तो पॉजिटिव रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकता है, दैट इज अ समरी। ओके, राइट, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट पहले 173 में था, नाउ 193 में दे रखा है। इज इट क्लियर? और पुलिस रिपोर्ट में एक और टॉपिक है, दैट इज नोन एज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कि अगर मैंने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो जनरली तो मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, बट उसके बाद भी इफ आई वांटेड टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन देन आई कैन गो। और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन अंडर 193 क्लॉज 9। पहले 173 क्लॉज 8 हुआ करता था, but now it is in 193 clause 9. That means there is a slight change in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस प्रोविजन में भी थोड़ा बहुत चेंज है, तो दैट वी विल बी लुकिंग फर्दर। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है बेसिकली। ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, और अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो बी डूइंग व्हाट, वी विल बी गिविंग द डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड, दैट will be in the form of 230 and 231। 230 जब पुलिस रिपोर्ट वाला ऑफेंस हुआ हो तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देते हैं एक्यूज्ड को, जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे जाते हैं बाय द कोर्ट, एंड द कोर्ट बिलीव्स कि ये डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड को मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, तो मैं वो डॉक्यूमेंट दे दूंगा। पहले ये जो 230 है ये पहले 207 में था और ये 208 में था, बट नाउ इट इज इन 230 एंड 231, दैट इज फॉर गिविंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स देते हैं हम फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। समझ में आ रहा है यहां तक? टेल मी। राखी ठीक है, दीपांशी ठीक है, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, चिराग ठीक है, अमित ठीक है, प्रिया ठीक है, शैली ठीक है, ऑल राइट, कुणाल ठीक है, वेरी गुड। सलोनी? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आई बिलीव इट इज क्लियर। नेक्स्ट, दैट इज इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब पंचनामा, राइट? कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, या फिर डेथ हो जाती है किसी की, राइट, एक्सीडेंट से, या किसी ने मर्डर कर दिया, तो वहां पर इंक्वेस्ट करा जाता है, पंचनामा करा जाता है। तो दैट इज अर्लियर गिवन इन 174 टिल 176, बट नाउ इट इज 196, 194, 194 से 196 तक दे रखा है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, राइट, सो दिस वी विल डिस्कस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, दैट इंक्वेस्ट क्या होता है। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर भी करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी करता है, राइट? तो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्दर वी विल डिस्कस द बेल। तो बेल was earlier in chapter 33, but now it is in chapter 35। चैप्टर 35 बेल। तो यहां पर दो तीन तरह की बेल होती है, एक होती है रेगुलर बेल, एक मैंने आपको डिफॉल्ट बेल अभी बताया है ऊपर, राइट? आई जस्ट टोल्ड यू द डिफॉल्ट बेल, दैट इज इन 187, है ना, 187 में है डिफॉल्ट बेल। नाउ एक रेगुलर बेल की जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेगुलर बेल इज गिवन इन 478। पहले ये 436 हुआ करता था। ओके, जहां पर हम बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में भी आपको बेल मिल जाएगा, और बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर भी आपको बेल दे सकता है। तो दे 478 है, पहले 436 था।
उसके बाद 480 है, जो कि 437 हुआ करता था पहले। 437 पहले क्या कहता था कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता, उसमें कोर्ट देगा। तो वही चीज 480 में दे रखा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर बेल नहीं दे सकता, कोर्ट देगा। ठीक है, राइट। उसके बाद देयर इज अ एंटिसिपेटरी बेल। पहले 438 में था, अब 482 में है। अब 482 में है एंटिसिपेटरी बेल, राइट। ओके, तो ये जो 480 है, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बेल दे सकता था। अब कभी कभार ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि डेथ सेंटेंस हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट बेल देता है। तो उसका सेक्शन है 483। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट बेल देगा, जो कि पहले 439 हुआ करता था, राइट। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स वी विल बी डूइंग इन डिटेल, सारे के सारे वी विल बी डूइंग इन डिटेल। इसके साथ साथ वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द द डिफरेंस बिटवीन द बेल एंड बॉन्ड, कि बेल और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द कैंसिलेशन ऑफ बेल, कि अगर बेल को कैंसिल करना हो तो कैसे करेंगे, कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है, कि बेल अगर किसी को ग्रांट हो जाती है तो उस बेल को कैंसिल कैसे करेंगे हम, तो कैंसिल हो भी सकती है या नहीं हो सकती, दैट वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट further we will discuss about the surety, security, liabilities. Okay, liabilities, all these things we will be discussing that is related to bail. ठीक है, राइट। अब आगे फर्दर further we will discuss arrest. Further we will discuss arrest. अब अरेस्ट इज गिवन अंडर चैप्टर 5, पहले भी चैप्टर 5 में था, आज भी चैप्टर 5 में है अरेस्ट। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 35 से लेकर 62 तक है अरेस्ट। पहले 41 से लेकर 60A तक था, अब नाउ इट इज 35 से लेकर 62। ओके, इन दिस वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ अरेस्ट, who can arrest, the police officer can arrest, that the we as a general people can arrest, the private person can arrest, the magistrate can arrest. So all these things we will discuss, plus apart from this the safeguards on arrest, कि अगर अरेस्ट होता है तो व्हाट ऑल सेफगार्ड्स आर देयर, एंड देयर इज अ स्लाइट चेंज ओवर हियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सेक्शन पहले वो सेक्शन 46 हुआ करता था, बट नाउ आई बिलीव इट इज 38 या 41, ऐसा कोई सेक्शन है वो। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो वहां पर अब लिखा हुआ है कि आपको हैंडकफ करना जरूरी नहीं है। हैंडकफ आपको तभी करना है जब वो बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंस है, और हीनियस ऑफेंस के लिए भी दे हैव मेंशन्ड व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस, कि अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो, राइट, डेकॉइटी हुआ हो, मर्डर हुआ हो, तो ऐसे केसेस में आप हैंडकफ कर सकते हो। अदरवाइज किसी ने बस छोटी सी कोई चोरी करी तो उसमें हैंडकफ करना जरूरी नहीं है, राइट। ओके, सो दीज आर द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अरेस्ट, प्लस द केस लॉज, the DK Basu versus State of West Bengal, that was the landmark judgment upon the arrest that we will be discussing, plus the recent judgments are whatever there in the recent on the topic of arrest that we will be discussing. Okay, further we will discuss, this was all of investigation, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, राइट। अब इसके फर्दर मोर वी विल डिस्कस द कंप्लेंट।
तो पहले ये चैप्टर 15 में था, अब ये चैप्टर 16 में है। चैप्टर 16 में है कंप्लेंट। ये पहले सेक्शन 200 से लेकर 203 तक था, अब ये 223 से लेकर 226 तक है कंप्लेंट। दिस इज बेसिकली a complaint proceeding. So this is again very important topic for your mains point of view, complaint proceeding. बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। आपको लग रहा है इसमें 3-4 सेक्शन है, बट दिस 3-4 सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? And very detailed also. Further, we will discuss about the cognizance. कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं, संज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निजेंस, अब कॉग्निजेंस पहले सेक्शन 190 में था, अब सेक्शन 210 में है। 210 से लेकर 222, राइट। 222 बात करता है डिफेमेशन के केस में कॉग्निजेंस कोर्ट कैसे लेगा, अगर डिफेमेशन प्रेसिडेंट का हुआ है तो कौन कंप्लेंट करेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 222 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस वी विल डिस्कस। तो ये 210 से लेकर 222 तक है कॉग्निजेंस, ठीक है। अब इसमें आपको खुद से करना है 218। दिस इज इंपॉर्टेंट बाय योरसेल्फ। आपको एक खुद से करना है, नहीं समझ में आया मैं बता दूं। ये बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स की, जो कि पहले 197 में हुआ करता था। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि पीटी में पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इसके साथ साथ वी विल डिस्कस द लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। ये भी हम पढ़ेंगे। अभी लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस को आगे लिखवाता हूं मैं। तो जब ये हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा, कॉग्निजेंस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इशू ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस। तो ये पहले सेक्शन 204 में हुआ करता था, बट नाउ इट इज इन 227 से लेकर 233 तक है, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस 227 से लेकर 233 तक है ये। अब इसमें हमें इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। एक है 228, 228 जो कि बात करता है एग्जाम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है। जो कि बात करता है एग्जाम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस की, जज साहब मैं अक्यूज हूं, मैं इस डेट पर नहीं आना चाहूंगा, प्लीज मुझे एग्जाम्प्ट करें, प्लीज मुझे एक्सक्यूज करें माय अपीयरेंस। आई वुड लाइक टू अपीयर थ्रू माय प्लीडर, थ्रू माय लॉयर, ओके। तो यहां पर एग्जाम्पशन की बात कर रहा है, एग्जाम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, of personal appearance. This we will be reading it with section 355. Read with section 355. Okay. Section 335. Section 308. इसके साथ हमें पढ़ना है, ठीक है, राइट। क्योंकि यहां पर ये बात करता है कि अगर आपको मैंने एग्जम्प्ट कर दिया, आप अपीयर नहीं हो रहे, तो आपके नॉन अपीयरेंस पर भी मैं एविडेंस ले सकता हूं या नहीं ले सकता। और क्या वो लूंगा अगर मैं आप अपीयर नहीं हो रहे और मैंने एविडेंस ले लिए, तो क्या वो वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा। दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर, ठीक है। इज इट क्लियर कि आपने खुद एप्लीकेशन लगाई कि जज साहब मैं अपीयर नहीं होना चाहता, तो आप नहीं अपीयर हो रहे, ठीक है, मैं आपके आपके नॉन अपीयरेंस की वजह से मैं एविडेंस क्यों रोकूंगा, एविडेंस मैं ले लूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? टेल मी। तो ये जो 228 है ये पहले हुआ करता था 205, पहले इट वाज यूज्ड टू बी 205,
और ये छोटे ऑफेंसेस में आप एग्जाम्पशन लगा सकते हो, बहुत हीनियस ऑफेंस में एग्जाम्पशन नहीं लगा सकते। ओके, राइट। फर्दर वी विल डिस्कस सेक्शन 229 जो कि पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, और पेटी ऑफेंसेस में एक स्पेशल सम्मन्स जाते हैं। ठीक है, पेटी ऑफेंसेस में स्पेशल सम्मन्स जाते हैं। पहले 1,000 रुपए तक का फाइन हुआ करता था, बट अब उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का फाइन आप दे सकते हो और प्लीड गिल्टी कर सकते हो। तो ये 229 है जो कि पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। दिस हैज टू बी रेड विद 276। ओके, जो कि पहले 253 हुआ करता था। दैट इज समरी केस में जजमेंट कन्विक्शन की बात कर रहा है। एनीवेज वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। फर्दर वी विल डिस्कस सेक्शन 233। अब ये 233 बात करता है किस बारे में, कि अगर एक ही ऑफेंस पर कंप्लेंट प्रोसीडिंग चल रही है और कोर्ट को पता चला कि सेम ऑफेंस पर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या प्रोसीजर कंप्लेंट प्रोसीडिंग अपनाएगा, वो दे रखा है 233 में। पहले इट वाज इन 210। ठीक है, समझ में आया यहां तक? दीपांशी ठीक है, रूपल ठीक है, कुणाल ठीक है, श्रेया ठीक है, राखी ठीक है, प्रिया ठीक है, अमित ठीक है। ऑल राइट, आई बिलीव दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब आगे और चलते हैं। तो अभी हमने बात करी है प्री ट्रायल की। ठीक है, प्री ट्रायल स्टेज कौन सा हो गया? इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो ये प्री ट्रायल स्टेज की हमने बात करी है अभी तक। और प्री ट्रायल की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, और अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सेक्शन 173 से लेकर 196 तक दे रखा है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है, और जो कॉग्निजेंस है वो मैंडेटरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी अपॉन द मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस, रादर इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो कॉग्निजेंस जो है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 210 से लेकर 222। ठीक है, कॉग्निजेंस, दिस वी विल ऑल्सो बी रीडिंग इट विद द, बिकॉज लिमिटेशन भी आता है कि अगर 1 साल तक का ऑफेंस है अपनिशेबल, तो उसमें कितने टाइम के अंदर आपको एफआईआर करनी पड़ेगी या कॉग्निज लेना पड़ेगा, तो दैट इज लिमिटेशन। तो वो दे रखा है सेक्शन 513 से लेकर 519 तक। राइट, ये बात करता है लिमिटेशन ऑफ टेकिंग, फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ओके, ये बात करता है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, limitation for taking cognizance. Okay, next, further we will discuss issue of process. Right, issue of process, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बता चुका हूं। ये दे रखा है 227 से लेकर 233 तक। ओके, इशू ऑफ प्रोसेस। इसके साथ साथ प्री ट्रायल स्टेज आपका कंप्लेंट भी आ जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लेंट, कंप्लेंट प्रोसीडिंग, जो कि 223 से लेकर 226 तक दे रखा है। कंप्लेंट प्रोसीडिंग जो पहले 200 से लेकर 203 तक था, अब 223 से लेकर 226 है। इसके साथ साथ देयर इज ऑल्सो अरेस्ट। ओके, अब अरेस्ट में सेक्शन 35 से लेकर 62 तक दे रखा है अरेस्ट। ओके, इसके साथ साथ क्योंकि अरेस्ट है तो बेल भी होगा। बेल आपका सेक्शन 478 से लेकर 496 हम देखेंगे, और इसमें एक स्पेशल सेक्शन है
सेक्शन 430 ये एक स्पेशल सेक्शन है। ये कहता है कि अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो और आप अपील में जाना चाहते हो और बेल चाहिए आपको, तो कन्विक्शन के बाद भी आप बेल ले सकते हो और आप अपील में जा सकते हो। तो वहां पर आपका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाता है। तो यहां पर एक केस लॉ है नवजोत सिंह सिद्धू का। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 389 हुआ करता था, अब ये सेक्शन 430 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपील, राइट। तो यहां पर अपील में आप बेल लेते हो और वहां पर क्योंकि आप बाहर हो तो आपका सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू का केस है, पहले 489 था, अब 430 है। पहले 389 था, अब 430 है। ठीक है, डन। टेल मी। तो राखी ठीक है, सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, कुणाल ठीक है, चिराग ठीक है। अब आगे बेल सर, एक एक बार जूम आउट कर दीजिए। अच्छा, आलो जी, हियर इट इज। डन। ओके रूपल ठीक है। तो यहाँ पर ओवर हेयर दैट बेल के बाद है चार्ज। ठीक है। अब चार्ज पहले चैप्टर 17 में था, अब चैप्टर 18 में है। अब ये चैप्टर 18 में है, ठीक है, पहले चैप्टर 17 में था। अब ये सेक्शन दे रखा है 234 से लेकर 247 तक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज। अब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज में वी विल बी डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू चार्ज। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू चार्ज, ओके, दिस वी विल डिस्कस। यहाँ पर सेक्शंस आ जाते हैं, सेक्शन 232 से लेकर 237, राइट। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू चार्ज, जो कि पहले सेक्शन 211 से 214 तक था, अब 232 से लेकर 237 तक है। ठीक है, राइट। इसमें वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, चार्ज ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, previous conviction. And since we will be discussing about previous conviction, so we will be connecting it with भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो क्योंकि हम प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज वेल एज भारतीय न्याय संहिता को कनेक्ट करेंगे। फर्दर वी विल डिस्कस द मटेरियल डिफेक्ट इन चार्ज, कि अगर चार्ज फ्रेम करते हुए कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है, कोई मटेरियल एरर है, तो उससे क्या होगा कि आपने नाम ही चेंज कर दिया, राइट। और वो डिफेक्ट क्या मटेरियल डिफेक्ट है या नहीं, दैट वी विल डिस्कस। तो मटेरियल डिफेक्ट इन चार्ज ये दे रखा है सेक्शन 238, जो कि पहले 215 में हुआ करता था। उसके बाद द थिंग इज दैट इज ऑल्टरेशन एंड एडिशन ऑफ द चार्जेस, कि एक बार चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद क्या हम ऑल्टर कर सकते हैं, क्या उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यस और नो, दैट वी विल डिस्कस। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन एंड एडिशन ऑफ चार्ज, ओके, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 239 एंड 240। तो 239 में हम चेंज करेंगे,
और जब चेंज कर लिया तो उसके बाद हम विटनेस को भी बुला सकते हैं, वो 240 में बुलाएंगे, रिकॉलिंग ऑफ विटनेसेस। पहले 216 217 हुआ करता था, अब 239 और 240 है। प्लस वी विल ऑल्सो बी लिंकिंग इट, we will be linking it with some additional prosecution, कि कोई थर्ड पर्सन है और हमें लगता है कि वो भी मिला हुआ है, तो उसका डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन करा जा सकता है। जो पहले 319 में था, अब सेक्शन 358 पे है। अर्लियर इट वाज इन 319 एडिशनल प्रोसिक्यूशन, नाउ इट इज इन 358। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हरदीप सिंह की जजमेंट है यहाँ पर, 5 जजेस बेंच की दी, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, राइट। Further, we will discuss in charge, that is joinder of charges. Joinder of charges कि एक एक्यूज के खिलाफ, अगर एक एक्यूज ने मल्टीपल ऑफेंसेस करे हैं सेम ट्रांजैक्शन में या अलग ट्रांजैक्शन में, तो क्या वो उन सबको ज्वाइन करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता? जॉइंडर ऑफ चार्जेस, तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं 241 से लेकर 245 तक। ओके, राइट, joinder of charges, and we will be connecting it with भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहले सेक्शन 71 आईपीसी हुआ करता था, अब वो सेक्शन 9 है भारतीय न्याय संहिता का, कि ऑफेंसेस अगर पार्ट्स में हुए हैं तो दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। फर्दर वी विल डिस्कस सेक्शन 246 BNSS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड, ये बात करता है ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड की। वहां पे ये बात थी ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की, यहाँ पर है ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड, कि अगर सेम ट्रायल में हम एक्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग एक्यूज को या नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट, राइट। ओके, वी हैव स्टडीड ओवर देयर। ठीक है, फर्दर वी विल डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्ली ऑफ गिल्ट एंड द कन्फेशन। कि कन्फेशन और प्ली ऑफ गिल्ट में डिफरेंस क्या है, राइट, क्या ये सेम है या अलग है, दिस वी विल डिस्कस। फर्दर वी विल डिस्कस द स्टे ऑफ चार्जेस, द स्टे ऑफ चार्जेस, कि चार्ज, अगर मान लो मैंने 3 4 चार्जेस लगाए हैं और उनमें से एक बड़ा चार्ज प्रूव हो जाता है और दूसरे चार्ज को प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको मैं स्टे कर देंगे, उसको उसके ऊपर स्टे हो जाता है या विड्रॉ हो जाता है। सो दिस इज गिवन अंडर 247। ठीक है, 247, स्टे ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट, देयर इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। पहले 320 में हुआ करता था, अब 359 में है। Now it is in 359, compounding of offenses. Further, we will discuss plea bargaining. Plea bargaining. This is given earlier in 265A से लेकर 265L, but now it is 289 से लेकर 300। प्ली बार्गेनिंग, कि प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, किन केसेस में प्ली बार्गेनिंग होगा, all these things we will be discussing. Next is withdrawal from prosecution.
विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो वो केस मैं वापस ले सकता है क्या, कोर्ट या स्टेट वापस ले सकता है, ले सकता है तो कैसे लेगा। आपने देखा होगा कई बार मिनिस्टर्स के अगेंस्ट केस वापस ले लिया जाता है, तो वो विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन होता है। तो वो पहले 321 में था, अब सेक्शन 360 में दे रखा है। पहले 321 में था, नाउ इट इज इन 360। ओके, नाउ फर्दर वी विल डिस्कस द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। दैट हाउ द चार्ज इज फ्रेम्ड, चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, उसका एक एक वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट है। देयर इज अ फॉर्मेट दैट आई विल बी टेलिंग यू, राइट, हाउ टू फ्रेम अ चार्ज। तो यहां तक प्री ट्रायल था, तो टिल नाउ इट वाज प्री ट्रायल, and after this the trial starts, because once the charge is framed the trial will start। तो यहां तक सबको क्लियर है? टेल मी। स्प्रिया ठीक है, राखी ठीक है, अमित ठीक है, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है, एंड शैली, श्रेया ठीक है, कुणाल ठीक है, प्रीक्षा, दीपांशी, दीपांशी ठीक है। ओके, ऑल राइट, आई बिलीव दैट इट इज क्लियर टिल नाउ। अब इसके बाद ट्रायल की चीजें हैं, तो ये भी चलो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ सारी चीजें। आज सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास से वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, ठीक है, राइट। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, बहुत बड़ा है, लग रहा है आपको ऐसा? टेल मी, व्हाट इज योर फीलिंग टुवर्ड्स दिस, कि कितनी सारी चीजें पढ़नी है? शैली सेज यस सर, ओके, रूपल सेज यस, ओके, श्रेया सेज यस, ओके, चिराग सेज यस, प्रिया सेज यस, ओके। देखो, ये अभी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, बट जब, ट्रस्ट मी, जब आप ये सारा कर लोगे ना, तब आपको लगेगा कि ठीक है, ये सारी चीजें इट इज इन योर माइंड, इट इज नॉट दैट बिग। पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, बट वंस यू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ सीआरपीसी, दिस बीएनएसएस, तो आपको पॉइंट वन से लेकर पॉइंट एंड तक सारी चीजें एकदम प्रोसीजर याद हो जाएगा, कि पहले एफआईआर हुई, सीआरपीसी ही लर्न नहीं हुआ, अब ये कैसे करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। पहले एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कॉग्निजेंस लेंगे तो उसको इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट देंगे, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका क्या नाम है, अगर कमिटल होगा तो कमिटल करेंगे, अदरवाइज उसका चार्ज फ्रेमिंग पे जाएंगे हम, है ना। तो ये एक प्रोसीजर है, और बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू, डू नॉट वरी, इट इज वेरी इजी। इट्स जस्ट, इट इज अ बिट लेंदी, थोड़ा बहुत लेंदी है। आगे चलते हैं फर्दर, अब ट्रायल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल में देर आर डिफरेंट ट्रायल्स, सेशन ट्रायल अलग होता है, वारंट ट्रायल अलग होता है, समन्स ट्रायल अलग होता है, समरी ट्रायल अलग होता है। तो पहला हम देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल, सेशंस ट्रायल, जो कि सेक्शन 248 से लेकर 260 तक दे रखा है। पहले 225 से लेकर 237 तक था, अब 248 से 260 तक है। तो यहाँ अगर आप यूपी देना चाहोगे, तो जैसे अभी आज अंकिता बता रही थी, तो वहां सेशन ट्रायल या वारंट ट्रायल का पूरा ट्रायल पूछ लेते हैं, प्रोसीजर पूछ लेते हैं, तो आपको सेक्शन नंबर वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, राइट। तो दिस आई विल बी हेल्पिंग यू विद, राइट, डू नॉट वरी। तो यहाँ सेशन ट्रायल पढ़ेंगे, और सेशन ट्रायल अगर डेथ सेंटेंस पास करता है, तो डेथ सेंटेंस पास करने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 407, ओके, जो कि पहले 366 था, और 412 जो कि 371 है। तो 366 में जो सेशन कोर्ट है, जो कि 407 है, अब 407 में सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, और 412 में हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर सकता है। सो कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट विल बी डन अंडर 412,
क्योंकि सेशन कोर्ट के पास तो पावर है कि वो डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, बट दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो दिस वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट further we will discuss. Second is warrants trial. Warrants trial. तो warrants trial that is given under section 261 से लेकर 273। अब वारंट ट्रायल में ना दो चीजें हैं, एक वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक वारंट ट्रायल अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, दैट इज बेसिकली अ कंप्लेंट। ठीक है, तो दिस वी विल डिस्कस। ये पूरा दे रखा 261 से लेकर 273। पहले 238 से लेकर 250 तक हुआ करता था। ओके, अब 261 से 273 में है। नेक्स्ट इज सम समन्स ट्रायल। समन्स ट्रायल, तो समन्स ट्रायल बेसिकली सेक्शन 274 से लेकर 282, इसका फर्दर और छोटा प्रोसीजर हो जाता है। समन्स ट्रायल छोटे ऑफेंसेस के लिए है। ठीक है, मेनली बेयर एक्ट पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल, अब समरी ट्रायल इज गिवन अंडर सेक्शन 283 से लेकर 288। ठीक है, समरी ट्रायल, तो दिस ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग summons trial and summary trial. Further, this trials, we will be having a topic called reference. We will be having a topic called reference. अभी जो रेफरेंस है पहले 395 में हुआ करता था, अब नाउ इट इज इन 436। ओके, प्लस 437। रेफरेंस इज ऑलवेज बाय द हाई कोर्ट। ओके, राइट, तो ये हमें पढ़ना है। फर्दर we will discuss jurisdiction of court. कि क्या इसका jurisdiction है या नहीं। ठीक है, तो ये jurisdiction चैप्टर 14 में दे रखा है। ये jurisdiction टेरिटोरियल jurisdiction की बात कर रहा है कि क्या ये मेरे jurisdiction में आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक मिनट रुको, लेट मी पुट दिस ऑन चार्जर। ओके, नाउ इट इज इन चार्ज, इट इज बीइंग चार्ज्ड। सो jurisdiction ऑफ द कोर्ट, तो jurisdiction दे रखा है चैप्टर 14 में, जो कि सेक्शन 197 से लेकर 209 तक दे रखा है। ओके, 197 टिल 209। फर्दर इसके अलावा आफ्टर द jurisdiction वी विल बी डिस्कसिंग ट्रांसफर ऑफ केसेस, कि केस को कैसे ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ केसेस जो कि सेक्शन 446 से लेकर 452 तक दे रखा है। ओके, 446 से लेकर 452 तक दे रखा है, और हमें डिस्कस करना है 446 ट्रांसफर बाय सुप्रीम कोर्ट एंड 447 ट्रांसफर बाय हाई कोर्ट, जो कि पहले 406 से लेकर 412 तक था, बट अब 446 से लेकर 452 है। सो दिस वी विल डिस्कस। फर्दर we will discuss about appeals and revision. Appeals and revision we will discuss. Further we will discuss about irregularities. Irregularities in proceedings, कि अगर irregularity होती है प्रोसीडिंग्स में तो कहां कहां प्रॉब्लम आती है, राइट। सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 506 टिल 512, जो कि पहले 460 से लेकर 465 तक था, अब 506 से लेकर 512 तक है, राइट। नेक्स्ट
we will discuss about maintenance. जो कि पहले सेक्शन 125 में था, अब सेक्शन 144 टिल 147 मेंटेनेंस. जस्ट गिव मी 1 minute. Yes, am I audible? तो यहां तक लिख लिया, तो यहां तक तो मैं करवाऊंगा. टिल नाउ आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, राइट. टिल नाउ आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, बट नाउ यू हैव टू डू. अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट. आपको क्या करना है, एरियाज बाय योर सेल्फ, दैट इज समन्स एंड वारंट. Summons and warrants. Next, proclamation and attachment. या फिर लेट्स डू वन थिंग, जो आपको करना है, दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई विल बी ऑल्सो टेलिंग यू द सेक्शन नंबर्स. ठीक है, राइट. आई विल नॉट गो इन अ हरी. तो दिस जो आपको करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट. तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा कि हमें सीआर इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, इन टॉपिक्स को क्या कहते हैं, इन टॉपिक्स में है क्या, कौन से प्रोविजन है, कौन से सेक्शंस हैं, पहले कौन से थे, अब क्या है. तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, राइट. ओके. अब हमें नेक्स्ट क्लास से वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. ऑल राइट एवरीवन. So just wait for 1 minute. Let me close this recording. Just wait for 1 minute.